کہ عظمیٰ فاطمہ نے جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کی جان کو بچانے کے لیے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے وہ واپس آئے۔ اس CCTV کیمرے میں یہ دکھ رہا ہے صاف طور سے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر صدر اویسی نے آج ہری لال باغ اعظم پورے میں اسسٹنٹ انجینئر جنکو عظمیٰ فاطمہ کے گھر پہنچ کر ان کے والدین سے ملاقات کی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ 26 سالہ عظمیٰ فاطمہ جمعرات کی رات کو سری سیلم ہائیڈل پلانٹ میں آتش زدگی کے حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ عظمیٰ فاطمہ کی تدفین کل رات جہانما کے قبرستان میں عمل میں آئی۔ بیرسٹر اویسی کے دورے کے موقع پر ملک پیٹ کے اسمبلی احمد بلالہ، اعظم پورے کے نمائندہ کارپوریٹر محمد ابرار اور مقامی مجلسی لیڈر سید نعیم بھی موجود تھے۔ کل جو سری سیلم پاور پلانٹ میں جو حادثہ ہوا، جس کی وجہ سے 9 لوگوں کی جان چلی گئی، ان 9 لوگ جو کل اس حادثے میں ان کی موت ہوئی، انتقال ہوا، اس میں حیدرآباد پارلیمانی حلقے کی رہنے والی ہماری ایک قابل انجینئر بھی تھی، محترمہ عظمیٰ فاطمہ، جو وہاں پر ایک اسسٹنٹ انجینئر کا کام کر رہی تھی۔ میں آج یہاں پر اعظم پورے میں ان کے گھر آ کر ان کے والد جناب عبدالحق صاحب کو اپنی جانب سے، پوری عوام کی جانب سے ان کو تعزیت پیش کیا ہوں۔ اور یقیناً یہ بڑی غم کی بات ہے کہ کل جو سری سیلم پاور پلانٹ میں حادثہ ہوا، اس میں 9 لوگوں کی جانیں چلے گئے، ایک ڈویژنل انجینئر بھی تھے۔ میں آج جناب عبدالحق صاحب جو مرحومہ کے والد ہیں عظمیٰ فاطمہ کے، ان سے ملاقات کیا، اور یہ بات شاید کسی کو بھی نہیں معلوم، ان کے والد صاحب جناب عبدالحق صاحب نے اور ان کے بھائی نے مجھے بتایا ہے کہ عظمیٰ فاطمہ ایک بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ تھی، اور بچپنے سے وہ بہت زیادہ پڑھائی میں ان کی دلچسپی تھی، محنت کرتی تھی، اور اس کے نتیجے میں ان کو میرٹ کی بنیاد پر شہر حیدرآباد کا جو سب سے بہترین انجینئرنگ کالج ہے CBIT میں، ان کو میرٹ میں الیکٹرانک انجینئرنگ میں ان کو کورس کرنے کا موقع ملا، ایڈمیشن ملا، اور پھر اس کے بعد ان کو تلنگانہ جنکو میں وہ امتحان لکھی، اس میں کوالیفائی ہوئی، اور وہاں پر بھی ان کو میرٹ کی بنیاد پر یہ اسسٹنٹ انجینئر کی ان کو ملازمت ملی۔ ان کے والد جناب عبدالحق صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا، ماں تو باہر نکل چکی تھی ایک ٹنل سے، مگر وہ دوبارہ واپس آئی، کیونکہ بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ کس ٹنل سے ان کو نکلنا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بہادری کا کام ہے کہ عظمیٰ فاطمہ نے واپس آ کر جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کی جان کو بچانے کے لیے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے وہ واپس آئے۔ اس CCTV کیمرے میں یہ دکھ رہا ہے صاف طور سے کہ عظمیٰ فاطمہ دوبارہ واپس آ کر جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالنے کی پوری کوشش کی، اس میں سے بعض لوگ نکل گئے، مگر افسوس کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کھو دیا، اور عظمیٰ فاطمہ کی جان دوسروں کو بچانے میں چلی گئی۔ ہم حکومت تلنگانہ سے، خاص طور سے چیف منسٹر جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حادثہ ہوا اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے، اور تاکہ آئندہ اس طرح کا حادثہ نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جلد سے جلد جو اعلانات کیے ہیں، جو لوگ جن کی جانیں کل چلی گئی ہیں، اور عظمیٰ فاطمہ کے لیے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے 25 لاکھ روپے کے ایکس-گریشیا کا اعلان کیا، اور عظمیٰ فاطمہ کی جو تنخواہ تھی وہ زندگی بھر اس کا پینشن ان کے افراد خاندان کو ملتا رہے گا، اور تیسری چیز جو ایک کمپیشنٹ اپائنٹمنٹ ہے
उनके किसी ख़ानदान के फ़र्द को दिया जाएगा। मैं मुतालबा करता हूँ जनाब प्रभाकर साहब तेलंगाना जेनको के चेयरमैन से कि जल्द से जल्द ये जो ऐलानात हुकूमत की तरफ से किए गए हैं उसको रोब अमल में लाएँ। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जनाब अब्दुल हक साहब को, उनके तमाम अफराद ख़ानदान को अल्लाह उनको सब्र दे, क्योंकि एक गरीब ख़ानदान में रहते हुए इस बच्ची ने बड़ी मेहनत की, मरहूमा ने, और मेहनत करके अपने बलबूते के ऊपर उन्होंने ये नौकरी हासिल की, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया हैदराबाद के मायनाज इंजीनियरिंग कॉलेज CBIT में मेरिट की बुनियाद पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह इनकी मरहूमा की मग़फ़िरत फ़रमाए और इनके अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। और इंशाअल्लाह ताला ये बच्ची हम तमाम के लिए एक बहादुरी की मिसाल है कि कैसे वो अपनी ज़िम्मेदारी को, आग को देखते हुए उन्हें नहीं भूला और वापस जाकर अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान को क़ुरबान कर दिया। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। और मैं ही पुरसा देने के लिए आज मरहूमा के घर को आया था। शुक्रिया। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने हरीलाल बाग आजमपुरे में मुतवफ़ी असिस्टेंट इंजीनियर उस्मा फातिमा के वालिदीन और रिश्तेदारों से मुलाकात करके उन्हें पुरसा दिया और कहा कि हुकूमत मुतवफ़ी के ख़ानदान की भरपूर मदद करेगी। उनके हमरा उनके फर्जंद मोहम्मद आज़म अली भी थे। आज से 2 दिन पहले नागर कर्नूल में जो श्रीशैलम हाइडर प्लांट है, वहाँ पर हादसे की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें वहाँ के डिप्टी इंजीनियर सिनाज गौड़ और हमारे महल्ले की ख़ास तौर से हमारी पड़ोसन जो लड़की है आज़िमा फ़ातिमा का इंतकाल हुआ। उसका बहुत दुख का, हम लोगों को, सारे लोगों के इंतकाल पर काफ़ी दुख है। और तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब ने इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अहमियत दी, डिपार्टमेंट को। आज हमारी स्टेट पावर में सरप्लस स्टेट है और जिसमें हमारे CM साहब की हिकमत अमली, तमाम अहदेदारों का काम करने की वजह से बहुत पावर जनरेट हुआ है। आज हमारे पास सरप्लस पावर है। मैं तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि जो पावर में सरप्लस किए, और जो कल का हादसा हुआ परसों का, उसके लिए बहुत गम का इज़हार करता हूँ। यकीनन जो हमारे लिए काम करते करते अपनी जान कुर्बान किए, उन्हें हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और हमारे ऑनरेबल CM साहब ने डिप्टी इंजीनियर्स को 50 लाख एक ग्रेशा देने का वायदा कहा है। उसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर को 25 लाख रुपए और एक जॉब प्रोवाइड करने के लिए, और भी और कुछ हो सका तो हम ज़रूर हमारे CM साहब से नुमाइंदगी करेंगे। मज़ीद इन लोगों को और भी सपोर्ट अगर हुकूमत से हो सकती तो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। और बहुत हमारे लिए गम की बात है, बहुत दुख की बात है, ये कम उम्री में आज़िमा फ़ातिमा, बिल्कुल जिसकी उम्र 25 साल थी, और अभी उनको जो है 2 साल पहले ही जॉब मिला था। उस वक्त मुझसे आकर मिले थे और कहा था कि मुझे हैदराबाद कहीं मिल गया तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा अभी तो जॉब मिला है, आप जॉइन हो जाइए, बाद में कुछ दिन के बाद कोशिश करेंगे। उनके माँ बाप से भी मिला हूँ, मैं वालिद साहब मोहतरम को दिलासा दिया हूँ और अल्लाह से यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि ये लोग शहीद है जो लोगों की, आवाम की खिदमत करते हुए अपनी ड्यूटी पर जो जिस हादसे से उनकी जान गई है, उसका हम लोगों को बहुत दुख है। पुलिस ने आज मलकाजगिरी के कांग्रेसी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को अचंपेट में उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो श्रीशैलम हाइडल प्लांट का मायना करने जा रहे थे। इस प्लांट में जुमेरात की रात को हुई आतिशबाजी के वाक़े में 9 अफराद हलाक हो गए। रेवंत रेड्डी ने आतिशबाजी के वाक़े के लिए रियासती हुकूमत, खासकर मौके में जेंको को जिम्मेदार ठहराया। ఇవాళ విద్యుత్ శాఖలో చనిపోయిన ఉద్యోగస్తుల పట్ల మాకు కన్సర్న్ ఉంది, మాకు వాళ్ళ పట్ల సానుభూతి ఉంది, వాళ్ళకి న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అక్కడ జరిగిన పరిణామాలు చూసి చర్యలు తీసుకోమని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసే అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా కుటుంబాలను ఆదుకోమని చెప్పే అవసరం మాకుంది. కాబట్టి మీరు ఆపకండి దయచేసి. మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంది అనుకుంటే వెనక ముందల మీరు వెహికల్ పెట్టుకోండి, మీ వెహికల్లో తీసుకెళ్ళండి అక్కడికి. మీరు ఒక్క మాట చెప్పారు ఏమని, సార్ అక్కడ CBCID ఉన్నది, సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయి, మీరు వెళ్ళొద్దు అన్నారు. నువ్వు తాడు కట్టుకో, ఏ ఏరియాకి సీన్ జరిగిన సంఘటన జరిగిన ఏరియాని మొత్తం. सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन के माहाना मशायरे की फिलफोर इजराई का मुतालबा किया जो कई महीनों से बाकी है।
मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि 2 या 3 महीने से उनकी अदायगी रुकी हुई है और वक्फ बोर्ड इसके लिए हीले बहाने कर रहा है। तो ये शाह मोहम्मद खैरुद्दीन ने कहा कि अइम्मा और मौजूदीन कोविड-19 के चलते लॉकडाउन और उसके बाद के हालात से काफ़ी परेशान हैं। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड में इस वक्त 2,500-3,000 दरख्वास्तें पेंडिंग पड़े हुए हैं और इस बात से हमारी हुकूमत बखूबी वाकिफ़ है कि हमारे रियासत तेलंगाना में 20,000 से ज़्यादा मसाजिद हैं और शहर के ऐसे कई मसाजिद हैं जहाँ के अइम्मा मौज़नीन अभी हुकूमत से रुजू नहीं हुए और उसकी ख़ास वजह यही है कि उनको यही शिकायत है कि हुकूमत जो है ना बस 1-2 महीना देगी, उसके बाद में फिर वही हाल दस्तारे बेढंगी पहले जो थी अभी वही है। तो ये नज़रिए को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि ख़त्म करे और जो फैले पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनकी जो है ना एक सुई की जाए, चाहे वो शहर के हो या अजला के हो। और शहर से ज़्यादा अजला के हमारे अइम्मा मौज़नीन और भी ज़्यादा मुस्तहक़ होते हैं, वहाँ पर उनकी तनख्वाहें कम होती हैं और दूसरा उनका कोई ज़रिया आमदनी नहीं होता। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि 2,500 से 3,000 जो फैले वक्फ बोर्ड में जो है ना पेंडिंग पड़े हुए हैं उसकी भी एक सुई की जाए और उनके लिए भी इजाज़त जारी की जाए। चार मीनार के मजलिस रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने आज खिलवत मैदान में कोविड-19 के चलते एंटीजन टेस्ट की बस का इफ्तिताह किया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर अहसन ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए आवाम से अपील की कि वो अपने टेस्ट करवाने के लिए आगे आएँ और कोविड-19 से खुद को बचाएँ। उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि कोरोना वायरस के बड़ी तेज़ी के साथ फैलने के बावजूद लोग समाजी फासले की बरकरारी के बशमूल दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे हैं। जी सर। आज मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब की नुमाइंदगी पर हल्क़ असम्बली चार मीनार खिलवत ग्राउंड में कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए एक मोबाइल गाड़ी का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया और उसका इफ्तिताह भी MLA साहब ने किया है। मेरी मीडिया के ज़रिए से आवाम तक एक पैगाम मैं पहुँचा रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तमाम से गुजारिश है कि आप ये कोविड-19 के वायरस के सिलसिले में आप बेहतर जानते हैं कि पूरे मुल्क में अब तक करीब 55,000 लोगों की मौत इस वायरस से हो चुकी है और रियासत तेलंगाना में 744 लोगों की अमवात सिर्फ कोविड वायरस से हुई है। और आज के जो तेलंगाना में जो आदाद व शुमार आए हैं जिसमें ये बात बताई गई है कि जुमे के दिन जो टेस्टिंग हुई उसके जो नतीजे आए हैं करीब 1200 के करीब लोगों को कोविड हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शहर हैदराबाद में या हमारे मुल्क में जहाँ कहीं भी हम रहते हैं या किसी ज़िले में रहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस वायरस को रोकने के लिए अपना टेस्ट करवाएं। ये टेस्ट फ्री में हो रहा है और अगर खुदा ना खास्ता ये टेस्ट में ये बात मालूम होती है कि किसी को पॉजिटिव आया है तो फ़ौरन उनका तिबी इलाज या अस्पताल से उनको रुजू करवाया जाता है। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि ये कोविड-19 का वायरस हमारे दरमियान में है और इसको रोकने के लिए सबसे अहम काम जो हम सबको मिलकर करना है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो ये है कि हम अपना टेस्ट करवाएं और टेस्टिंग से ही हम इस वायरस को रोक सकेंगे। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो सहूलत
आज मुताल्लिक़ा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर खिलवत ग्राउंड में शुरू किया गया है। आप आइए, या जहाँ कहीं भी जो हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर ये टेस्टिंग करवाई जा रही है उसमें हिस्सा लीजिए। और कोविड वायरस को रोकने के लिए और एक और अहम बात यह है कि आप इस बात को समझिए कि ये कोई मायूब बात नहीं है कि अगर किसी को वायरस होता है, वायरस किसी को भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरे मुल्क में, पूरी रियासत में, तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना टेस्ट करवाइए। और फिर से मैं कह रहा हूँ, ख़ास तौर से जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो हमारी हामिला बेटियाँ बहन हैं, वो अपना टेस्ट करवाएं। जिनको डायलिसिस करवाना है वो अपना टेस्ट करवाएं। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, क़ल्ब के अमराज का इलाज हो रहा है, जिनके फेफड़ों का इलाज हो रहा है या कैंसर का इलाज हो रहा है, वो ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर उनको पॉजिटिव होता है तो फिर उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और मैं तीसरी बात ये कहना चाहूँगा आप तमाम से कि आप जब कभी भी अपने घर से बाहर निकलेंगे, मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ आप अपने चेहरे पर मास्क लगा कर निकलिए। ये बहुत ज़रूरी है। अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग जो रास्ते में रोड पर नज़र आते हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। ये आप वायरस को दावत दे रहे हैं अपने करीब आने के लिए। मास्क को पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना बेहद ज़रूरी है। और टेस्टिंग करवाना ये भी बेहद ज़रूरी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों पर गौर करिए और याद रखिए कि अगर आप ज़रा सी भी कोताही और काहिली करेंगे और इस वायरस का टेस्टिंग नहीं कराएंगे या इसका सही वक्त पर इलाज नहीं शुरू करेंगे तो खुदा ना खास्ता आप अपनी जान को भी खो सकते हैं, या फिर गैर ज़रूरी आपको अस्पताल में शरीक होकर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो लाखों रुपये के अखराजात वहाँ पर आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ आप टेस्टिंग करवाइए, मास्क पहनिए, अपने हाथ को धोते रहिए, अपने बुज़ुर्गों का, अपने बीमार लोगों का ख्याल रखिए और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस कोविड वायरस को रोकेंगे। और हम अल्लाह से दुआ भी करते रहेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने फजल करम से अपने जलाल को जमाल में तब्दील करके इस मुल्क से और इस पूरी दुनिया से अल्लाह इस वायरस को उठा ले। रियासत में ज़राअत और मेडिकल के एमसेट इम्तिहानात का 28 और 29 सितंबर को इनेकाद अमल में आएगा। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने आज शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि इंजीनियरिंग के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को एंट्रेंस टेस्ट होगा। एजुकेशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट 1 और 3 अक्टूबर और लास्ट सेट का इम्तिहान 4 अक्टूबर को होगा। इंजीनियरिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 31 अगस्त को मुकर्रर है। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक के हाइडल प्लांट में जुमेरात को लगी आग में मरने वालों की तादाद 9 हो गई है। जेंको के गवर्नर ने रात देर के बताया कि इस हादसे में 10 अफराद बच गए। जख्मियों ने बताया कि खुदा ने ही उन्हें बचाया, वरना आग इस कदर भयानक थी कि सारा टनल फट पड़ता। जख्मी शख्स ने बताया कि सिर्फ 4 पैनल को नुकसान पहुंचा है। एक और जख्मी शख्स ने बताया कि आग पहले यूनिट में लगी और फिर बड़ी तेजी के साथ फैलने लगी। इसी दौरान तेलंगाना ट्रांसको और जेंको के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर डी प्रभाकर राव ने बताया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में ऐसी आग उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि इमदाद और राहत का काम मुकम्मल होने के बाद ही नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जाएगा। एक सवाल के जवाब में प्रभाकर राव ने बताया कि आग रात 10:30 बजे लगी और उस वक्त जुमला 20 अफराद काम कर रहे थे। जो लोग कंट्रोल रूम में बैठे थे वो बच गए। 10 रोज़ा गणेश त्यौहार का आज से आगाज हो गया। कोविड-19 के चलते हुकूमत की तरफ से आयत करदा तहदीदात के सबब शहर में आम चौराहों पर गणेश मंडप कायम नहीं किए गए। अलबत्ता लोगों ने अपने घरों, कारोबारी इदारों और दफातर में ही मूर्तियां बिठाई। खैरताबाद की मशहूर गणेश मूर्ति का साइज भी घटाकर 9 फीट कर दिया गया है और वहाँ महदूद तादाद को ही पूजा की इजाज़त दी गई है। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने अपने बयानात में हिंदुओं को गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद दी। छतरीनाका पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते श्री छत्रगुप्त मंदिर की हुंडी को तोड़कर उसमें से रकम निकालने वाले सारिक 29 साल मोहम्मद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया, जो कि बालापुर का रहने वाला है।
पुलिस ने उसके कब्जे से 22,000 रुपए की नकद रकम, एक मोबाइल फोन जिसकी जुमला मालियत 30,000 रुपए बताई जाती है, बरामद किया गया। इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल ने बताया कि मुलजिम माजी में हैदराबाद और चाकुंडे में तरक्की की कई वारदातों में मुलविस था। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने अपनी टीम की मदद से ये गिरफ्तारी अमल में लाई। गोलकुंडा पुलिस ने मुतनाज़िया और बदनाम ज़माना NGO हैदराबाद यूथ कैरिज के खिलाफ एक और मुकदमा ठोक दिया है। उन पर एक खानदान के नाम पर चंदा वसूल करके खा जाने का इल्ज़ाम है। फरीन सुल्ताना नामी एक खातून ने अपनी शिकायत में बताया कि NGO ने उनके शौहर अकबर हुसैन के इलाज के नाम पर लोगों से पैसे जमा किए। माह मई में हैदराबाद यूथ कैरिज ने उनके अकाउंट में 3 लाख और 6.5 लाख रुपए जमा किए और उसमें से सिर्फ 5 लाख रुपए हवाले किए। वाज़ेह है कि इस NGO के खिलाफ 4 मुकदमात पहले ही से दर्ज हैं, जिसमें इन पर सोशल मीडिया के जरिए चंदे की अपीलें करते हुए मुखैर असाब से 1 करोड़ रुपए वसूल करने का इल्जाम है। कालापत्थर पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा को नुकसान पहुंचाने और उसके मालिक को डराने धमकाने पर एक रॉडी शीटर मोहम्मद वाजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक वाजिद ने अपने चंद साथियों के हमरा बिरानी शाह की टेकरी में जाकर एक ऑटो को तोड़फोड़ की। इंस्पेक्टर सुदर्शन मसरूफ तहकीकात हैं। एक अजीब गरीब वाक़े में खातून ने पंजागुट्टा पुलिस से रुजू होते हुए 143 अफराद के खिलाफ हिरासानी, धोखाधड़ी और असमत रेजी की शिकायत दर्ज करवाई। चुनांचे पुलिस फौरी हरकत में आते हुए इन तमाम के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुमाजुगड़े की रहने वाली खातून, जिसकी 2009 में शादी हुई थी और फिर 1 साल के बाद ही तलाक हो गई थी, रोजगार की मतलाशी थी। उसने बताया कि शादी के 3 माह के बाद से उसके शौहर के कजन्स और दूसरे रिश्तेदार उसे हिरासा करने लगे। उसने 143 अफराद के नामों की फहरिस्त भी पुलिस के हवाले की और बताया कि उसका कई मरतबा जिनसी इस्तेसाल किया गया। पुलिस पंजागुट्टा ने बताया कि एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की तहकीकात जारी हैं। एक्साइज के हुकाम ने कल 3 नाइजीरियाई बाशिंदों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 6 ग्राम कोकीन बरामद की। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एक्साइज अंजनी रेड्डी के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में टोली चौकी का 32 साला सैमुअल स्मिथ नेल्सन, प्रशांत नगर मलकपेट के रहने वाले 27 साला जेम्स मार्लिन और 32 साला मरवान अब्दुल करीम अब्दुल्ला ताहिर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि तीनों को जो कार में जा रहे थे, मामूल की चेकिंग के दौरान रोका गया और कार की तलाशी के दौरान ये कोकीन बरामद हुई। उन्होंने बताया कि ये तीनों मुंबई के रहने वाले अमोनुअल से ये कोकीन हासिल किया करते थे। उर्दू मीडियम मदारिस और उर्दू मीडियम तलबा के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए आज दफ्तर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के रूबरू उर्दू मीडियम के असातिज़ा ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इन असातिज़ा ने कहा कि तेलुगु असातिज़ा की तरह उर्दू मीडियम के असातिज़ा को भी मराहत मिलना चाहिए। उन्होंने महकमे आला तालीम की तरफ से रवा रखे जाने वाले इम्तियाजी सलूक की मजम्मत की। जैसा कि मुसलसिल 2 महीनों से हमने रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ ईमेल के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए हुकूमत के नुमाइंदों, हुकूमत के ऑफिसर्स के सामने कई एक बार मुतालबात पेश किए हैं कि उर्दू मीडियम स्कूल्स के ताल्लुक़ से, उर्दू मीडियम तलबा के ताल्लुक़ से, उर्दू मीडियम टीचर्स के ताल्लुक़ से कि हमें भी शाना बाशाना तेलुगु मीडियम के साथ जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो हमारे उर्दू मीडियम के लिए भी मुनक़िद किए जाएँ। लेकिन कई बार नुमाइंदियाँ करने के बावजूद भी ये हुकूमत के कानों पर जून नहीं रहेंगी। ये जो है ना तासुबाना रवैया जो ऑफिसर की जानिब से पेश किया जा रहा है। हालांकि हुकूमत तेलंगाना ने सरकारी तौर पर उर्दू को दूसरी ज़बान का दर्जा दिया है, लेकिन यहाँ के तेलंगाना के जो ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन ऑफिसर्स, उनकी तासुबाना ज़हनियत की वजह से जो है ना आज हम जो है ना इस एहतजाज के करने पर मजबूर हो गए हैं कि हमें भी ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम्स और हमें भी जो है ना उर्दू की किताबें और हमें भी जो है ना मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स जो पिछले 2016 से नहीं दी जा रही हैं, हमें भी तेलुगु मीडियम के मुमासिल दिया जाए। ये हमारा मुतालबा है। ये हम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि वो हमें भी जो है ना शाना बाशाना तेलुगु मीडियम के साथ जोड़ें। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज अजला, मेदक, सिद्दीपेट और संगारेड्डी में हालिया बारिश से जिन सड़कों को नुकसान पहुंचा है उन्हें फौरी दुरुस्त करने की हिदायत दी। मौके में रोड एंड बिल्डिंग्स के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में उन्होंने कहा कि इन कामों के लिए हुकूमत के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है।
असेंबली हल्के उप्पल के कांग्रेसी इंचार्ज आर लक्ष्मण रेड्डी ने आज उप्पल में पार्टी कारकुनों और आवाम में मट्टी के गणेश मूर्तियां तकसीम की। उन्होंने कहा कि माहौलियत के तहफ़्फ़ुज़ और तालाबों को आलूदगी से बचाने के लिए घरों में मट्टी की मूर्तियां ही बिठाई जाएं। लक्ष्मण रेड्डी ने कोविड-19 के चलते आवाम से अपील की कि वह समाजी फासले की बरकरारी रखे। శుభాకాంక్షలు। వినాయకుడి పండుగ అంటే మన దేశంలోనే చాలా పెద్ద పండుగ। నవరాత్రులు ప్రతి ఒక్కరు చిన్న పెద్ద అనకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిష్టగా పూజలు చేస్తారు। ఈ పండుగ అనేది హైదరాబాద్లోనే కాకుండా దేశంలోనే చాలా పెద్ద పండుగ। ఈ పండుగని ఇతర దేశాలలో ఉన్న మన వాళ్ళు భారతీయులందరూ కూడా ఈ నవరాత్రి పండుగ జరుపుకుంటారు। వినాయకుడిని ఏ శుభకార్యం ఉన్నా కూడా కొలుస్తారు కాబట్టి ప్రపంచ దేశంలో కూడా ఈ పండుగకి చాలా గొప్ప పేరుంది। మన హైదరాబాద్లో మాత్రం నవరాత్రులు అనగానే వినాయక చవితి వినాయక పండుగ అనగానే చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు। ఇది చార్మినార్లో స్టార్ట్ అయ్యి హైదరాబాద్లో ప్రతి గల్లీ ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరిని చాలా ఉత్సాహంగా పండగ వాతావరణాన్ని మన దగ్గర వినాయక చవితి జరుపుకుంటారు కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఈరోజు ఈకో వినాయక అంటే మట్టి విగ్రహాలని ఇక్కడ పంచుతున్న మిత్రులందరూ కూడా డివిజన్ మిత్రులు ఆచారం డివిజన్ మిత్రులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ చట్టం ముగిస్తున్నాను। इलेक्शन कमीशन ने अमर सिंह के देहांत से यूपी की मखलुआ राज्यसभा नशिस्त के लिए 11 सितंबर को ज़िमनी चुनाव करवाने का ऐलान किया है। एक सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक रायदही सुबह 9 और 4 बजे के दरमियान होगी और इसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। चुनाव के लिए 25 अगस्त को एलामिया जारी किया जाएगा, जबकि 21 सितंबर को पर्चेजात दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। वाज़ेह है कि अमर सिंह का 21 अगस्त को सिंगापुर में देहांत हो गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्री सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट में आग लगने के वाक़े और उसमें 9 अफराद की हलाकत पर गहरे दुख का इज़हार किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने पसमानदगान से ताज़ियत किया और कहा कि वह जख्मियों की आदिलाना सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। इसी तरह रियासती वज़रा KT रामाराव, जी निरंजन रेड्डी, ई दयाकर राव और दूसरों ने भी इस हादसे पर गहरे दुख का इज़हार किया है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और रुकने पार्लियामेंट ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया है। दिल्ली पुलिस ने ISIS से वाबस्ता एक दहशतगर्द अबू यूसुफ को एक मामूली झड़प के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 2 ID और एक पिस्तौल बरामद की गई। स्पेशल पुलिस के डिप्टी कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि अबू यूसुफ मुल्क की राजधानी में कोई बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई करने का इरादा रखता था। कल रात धुला कला में पुलिस के साथ उसकी झड़प हुई थी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 72,878 केसेस सामने आने के बाद मुल्क में इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद 30 लाख के करीब हो गई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 983 नई अमवात होने के बाद मरने वालों की तादाद 55,994 हो गई है। पंजाब के बाद अब हरियाणा ने भी हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस का खैर सारी दुनिया को लपेट में लिए हुए है। अमरीकी जानब यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद अब 2,28,50,000 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद बढ़कर 7,93,983 तक जा पहुंची है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता
10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।